أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور گزشتہ ہماری جو ورکشاپ ہوئی ہے جس میں ہم نے جنرل جو طہارہ کے بارے میں جو ڈسکشنز کی تھیں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ آج کا جو سیشن ہم نے رکھا ہے وہ خصوصی طور کے اوپر خواتین کے مسائل سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہم خصوصی طور کے اوپر خواتین کے معاملات کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے، کیونکہ جب بھی ہم طہارہ کا سیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ کوئریز جو ہیں وہ انہی مسائل سے ریلیٹڈ آتی ہیں جو خواتین کے ہوتے ہیں، کیونکہ کافی معاملات جو ہیں خواتین کے وہ طہارہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں اکثر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ سیشن جو ہے یہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ہم میکسیمم ان تمام ایریاز کو کور کریں جو کہ ایک عورت کی زندگی میں آتے ہیں، اور ان کو ان تمام مسائل سے اور ان جو لمحات ہوتے ہیں اور وہ جو زندگی کے اندر جو سٹیپ بائی سٹیپ جو کنڈیشنز آتی ہیں اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے خواتین کو اگر ان معاملات کی آگہی ہوگی تو پھر وہ اس طرح کے مسائل کو بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے، اور وہ ایک طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس سیشن کے اندر میکسیمم جو کہ خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی سوال اگر ہوں تو کلاس کے اینڈ کے اوپر آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کوشچنس پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کے ٹاک کے جو موضوعات ہوں گے وہ یہ 6 ٹاپکس ہوں گے جس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کور کریں گے، جس میں سب سے پہلے حیض ہے، پھر حمل اور رضاعت یعنی ویننگ دودھ پلانا۔ اس کے ساتھ ہی بعد میں ہم کریں گے اسقاط حمل اور نفاس، یعنی کہ جو ابورشن ہو جاتا ہے یا حمل گر جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ استحاضہ، استحاضہ کی بھی معاملات بہت دفعہ کافی زیادہ آج کل بھی یہ خواتین کو اکثر یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ہم استحاضہ کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر لکوریا اور جنابت اس کو ڈسکس کریں گے، اور سنیاس یعنی مینوپاز کو۔ تو ہم ان تمام ایریا کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو اس کی اویئرنیس جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دین کے لحاظ سے ہو جائے گی، اور ہم اس کو بہتر طور کے اوپر ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حیض کو دیکھتے ہیں۔ حیض جیسا کہ ہم نے کل بھی اس معاملے میں پڑھا تھا، حیض یعنی پیریڈز، مینسز بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر طور پہ آگاہی دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اور کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے۔ اذیت کا لفظ بھی آتا ہے اور بیماری کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی کہ وہ کنڈیشن جو ہے عورت کی وہ صحت کی بجائے بیماری سے زیادہ قریب ہے۔ پھر حیض کا اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ رحم سے یعنی یوٹرس سے مخصوص ایام میں خون کا بہنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو مجھے حیض یعنی پیریڈز آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تمہیں حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امر یعنی حیض تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی کہ یہ شروع سے ہی جب سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا تو عورتیں اس چیز سے گزرتی ہیں۔
پھر حیض کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ جو پیریڈس کا جو خون ہوتا ہے اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، عام بلڈ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ جو ہوتا ہے سیاہی مائل رنگ کی طرف زیادہ اس کا ہوتا ہے، یعنی کہ عام خون جو بالکل ریڈ ہوتا ہے، اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گہرا، جسے کہتے ہیں نا بلیکش ریڈ کی طرف جو ہے نا مائل ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جمتا نہیں ہے۔ عام بلڈ جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، جبکہ یہ جمتا نہیں ہے۔ پھر اس کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرتی ماحول، خوراک، ہمارا رہن سہن، ہماری آب و ہوا، اور اس علاقے کے خطے کا موسم، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں۔ جن بعض دفعہ کو فیملی کی جو جینز جو ہوتے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں۔ تو عمومی طور کے اوپر کیا ہوتا ہے، 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک میں جو ہے یہ اس کے درمیان جو ہے خواتین کو یہ پیریڈز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا جو عارضی طور پر رکنا جو ہے، جب پیریڈز رکتے ہیں تو کن کن کنڈیشنز میں رکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران رک جاتے ہیں۔ پھر مرضع یعنی کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس وقت بھی پیریڈز رک جاتے ہیں۔ آج کل اکثر خواتین بعض دفعہ کوئی وہ لے لیتی ہیں، کانٹرسیپٹیو لے لیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر نہیں رک پاتے۔ لیکن اگر نارمل کنڈیشن ہو تو اس میں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، جب وہ ویننگ کنڈیشن میں ہوتی ہے، تو پیریڈز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ جب سٹارٹ ہوتے ہیں پیریڈز تو اس وقت بعض دفعہ کسی بچیوں کو، بعض دفعہ اگر ارلی ایج میں سٹارٹ ہو گئے تو بعض دفعہ اس دوران بھی درمیان میں کچھ مہینوں کا گیپ بھی آ جاتا ہے۔ پھر حیض کا مستقل اختتام جو ہے وہ سن یاس یعنی کہ مینوپوز، یہ عورت کے اندر تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے یہ ہر عورت کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ حیض کے بارے میں مختلف قسم کی توہمات جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، جس میں سے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ پائی جاتی ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سابقہ اقوام میں کھانا پینا اور رہائش جو تھی وہ الگ کر دی جاتی تھی۔ یہود کے اندر بھی یہی طریقہ تھا، انہوں نے خاص کچھ گھر بنائے ہوتے تھے جس میں جب ان کی عورتیں جو تھیں وہ اس فیز میں جاتی تھیں تو وہ ان کو ان گھروں میں رکھ دیا جاتا تھا، اور وہاں پر ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، کوئی کھانا پینا نہیں، ان کے ہاتھ کا کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا جو تھا لین دین نہیں کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی کینیا اور نیپال وغیرہ میں اس طرح کے جو گھر ہیں، جو تھوڑے ہاسٹل ٹائپ اور اس طرح کی بلڈنگز جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں، جہاں پر خواتین جب اس فیز میں جاتی ہیں تو ان کو وہاں پر الگ کر دیا جاتا ہے، اور ان کو مینسٹرل ہاؤسز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی کچھ بعض دفعہ کچھ توہمات پائی جاتی ہیں، کچھ خواتین میل ملاپ نہیں کرتی، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں خواتین کو جو ہے وہ پابند کر دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب نہانا ہے تو نہانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کپڑے، سارے کے سارے بیڈ شیٹیں، جہاں جہاں تم بیٹھی ہو، وہ سارے چیزیں جو ہیں ان کپڑوں کو دھو، جبکہ ہم اس کے بارے میں آگے مزید جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ یہ پابندی نہیں لگائی۔ وہ جگہ یا وہ کپڑا جس کے اوپر اگر بلڈ کا نشان لگ جاتا ہے تو صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے، اور صرف اسی کو ہی صاف کیا جائے گا۔ اور یہ یاد، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے ہمارے لیے۔ یہود کے ساتھ جو تھا ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، تو اس کو دھونے سے وہ صاف نہیں ہوتا تھا، اس کو وہاں سے ان کو کاٹنا پڑتا تھا۔ تو ان کی شریعت میں یہ چیزیں سخت تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ آسانی کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تسبیح نہیں پکڑنی، جائے نماز نہیں پکڑنی، آٹا نہیں گوندنا، اچار یا چٹنی وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ خراب ہو جائیں گی، دہی نہیں جمانا، زمزم نہیں پینا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ توہمات ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو ہے حیض کے معاملے میں ہمارے پہ یہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی
तिलावत फरमाते, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फेज में भी, जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला इस फेज में होती तो उनको अलहदा नहीं कर देते थे, उनको ये एहसास नहीं दिलाते थे कि अब तुम छूत हो गई हो, बल्कि उस टाइम भी उनके साथ मोहब्बत का मामला ही रखते थे। और क्योंकि खवातीन का ये जो दो होता है, ये फेज होता है, इसमें वो हार्मोनल उनका उससे पहले भी जब ये हैज आना होता है तो खवातीन की थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और उसका असर जो होता है वो उनकी नफ्सियात के ऊपर आता है। बाज़ दफा बाज़ खवातीन काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बाज़ खवातीन एक खास फेज में चली जाती हैं, और वो बाज़ दफा एक डिप्रेशन का सा जो है ना, एक मतलब अफसुर्दगी के अंदर जो है ना वो खो जाती हैं। तो ये नॉर्मल होता है। तो खवातीन के साथ आयशा रज़ी अल्लाह जैसा बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी मेरे साथ मोहब्बत का मामला रखते थे, और ताकि औरत जो है वो उस जो एक फीलिंग है उसकी, तो वो उस चीज को जो है वो ताकि वो अपने एक उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी जो एक फेज आता है तो वो उसमें ज्यादा अपने आप को प्रॉब्लमेटिक ना समझे। अब हालत हैज में जायज अमूर कौन कौन से काम है जो हाइजा के साथ किए जा सकते हैं? खाना पीना। हाइजा अपने शोहर का सर धो सकती है, कंघी कर सकती है, जैसे कि आयशा रज़ी अल्लाह करती थी। हाइजा का जायनमाज पकड़ना, यानी कि जायनमाज को पकड़ सकती है। हाइजा का के नमाजी के कपड़े को हाइजा का छूना, यानी कि अगर कोई नमाजी है उसके कपड़े को हाइजा छू सकती है, उसके साथ लेटा जा सकता है। और आदत फिर क्या है कि हैज से तहारत। अब यह है कि हमें बाज दफा कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किस तरह से कब ये चीज वाज़ेह होगी कि अब हम पाक हो गए हैं और अब हमें गुस्ल कर लेना चाहिए। तो एक तो ये है कि हर औरत को अपनी आदत का पता होता है कि उसकी आदत कितनी दिनों की है। तो एक तो वो उसके मुताबिक उसके दिनों का पूरा हो जाना। फिर ये है कि ज्यादातर मोस्टली खवातीन को जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो उसके बाद सफेद रंग का या हल्के जर्द रंग का जो है डिस्चार्ज होता है। तो उससे उस वो इस चीज की एक आगाही होती है और एक निशानी होती है कि अब पीरियड्स जो है वो खत्म हो गए हैं। जर्द या मटियाला पानी जो है वो हैज ही है। अगर अभी वाइट डिस्चार्ज नहीं हुआ और वो उस तरह का ही आ रहा है, पानी आ रहा है, तो वो हैज में शुमार होगा। आदत के मुताबिक रुक कर शुरू होना पाकी की अलामत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बाज दफा थोड़ी देर के लिए बाज दफा ब्लड रुक जाता है, और फिर एक या दो दिन बाज दफा रुक जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से शुरू होता है, तो वो हैज में ही शुमार होगा। फिर तोहर यानी हालत जो पाकी की हालत है, यकीनी होने के बाद जर्द रुतूबत देखना। यानी कि सफेद पानी देख लें जो हालत तोहर की निशानी है, उसको देख लिया जाए, और फिर उसके बाद गुस्ल करने के बाद बाज दफा कोई जर्द रंग की रुतूबत जो है वो खारिज होती है, तो वो जो है नहीं होगा, पीरियड्स नहीं होंगे, वो नापाकी नहीं होगी। पाक होने के चंद रोज बाद का अगर दोबारा से खून आना शुरू हो जाता है, अनलेस के बाद दफा कुछ खवातीन हार्मोन्स ले रही होती हैं, तो किसी कंडीशन की वजह से, तो हार्मोन्स की वजह से बाज दफा ये होता है कि जो पीरियड्स होते हैं उनके थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो उस सूरत में जो है फिर वो कंसीडरेशन वही करेगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है और उसमें कुछ इस तरह का जो मसला हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो जो है खातून जो है वो उस जर्द रुतूबत उस खून को जो है वो इस्तिहाजा में शुमार करेगी, अगर नॉर्मल कंडीशन है। इस्तिहाजा क्या होता है ये हम आगे इसको देखेंगे। फिर ये है कि हर खातून जो है वो अपने दिनों का हिसाब रखने की खुद जिम्मेदार है, ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने इन चीजों का खुद ख्याल रखना है और अपने दिनों का खुद हिसाब रखना है। फिर ये गुस्ले हैज और फिर हैज। गुस्ले हैज के लिए बाल खोल कर धोना जो है वो मुस्तहब है। आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि जबकि वो हैज से फारिग हुई थी, अपने बालों को खोलो और गुस्ल कर लो, क्योंकि ये नॉर्मली महीने में एक दफा ही होता है, तो इस वजह से बालों को प्रॉपरली खोल कर गुस्ल करना, बालों के धो के तो भी जरूरी है। अब गुस्ले हैज का तरीका क्या है? आयश हमने कल भी ये देखा था, आज भी हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह बयान करती हैं कि अस्मा रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ले हैज का तरीका पूछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में
हर औरत पानी और बेरी के पत्ते लेकर पाकी हासिल करे तो खूब अच्छी तरह करे। यानी कि अगर आपको बेरी के पत्ते मिल जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी एक एंटीसेप्टिक भी है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आजकल फेमिनिन वॉश बड़े अच्छे आए हुए हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर अपने सर पर पानी डालकर अच्छी तरह मले, यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। फिर अपने ऊपर पानी डाले। फिर मस्क लगाकर रुई का टुकड़ा लेकर इससे पाकी हासिल करे। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा इससे कैसे, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने सरगोशी के अंदाज में कैसे खून के मुकाम पर लगाए। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि उस वक्त जो खुशबू होती थी वो एक सॉलिड फॉर्म में होती थी। तो आज तो सॉलिड फॉर्म में इतना खुशबू नहीं मिलती, लिहाजा आप ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि आप वहां पर परफ्यूम लगा लें या इस तरह की कोई और लगा लें, तो इससे नुकसान होगा। ना ही आप वहां पर पाउडर लगाएं, क्योंकि पाउडर जो है उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, पाउडर को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसकी जगह फेमिनिन वॉश इस्तेमाल कर सकती हैं, आप अर्के गुलाब जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर कस्तूरी या कुश्ते असफार का इस्तेमाल जो है ये किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी सॉलिड मिल जाती है तो आप खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं। खुशबूदार साबुन साबुन वैसे तो ये है कि साबुन के अंदर भी केमिकल होते हैं, तो अवॉइड ही करना चाहिए कि साबुन उस जगह पे इस्तेमाल किया जाए। फेमिनिन वॉश जो है वो बेहतर है, और अर्के गुलाब जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हैज से कपड़ों का पाक करना है। हैज अगर किसी कपड़े पर लग गया तो उसको आप धो के साफ कर सकते हैं। हदीस के मुताबिक खुरच कर साफ करना, बेरी के पत्तों से धोना। यानी कि पहले उसको जब गीला करके उसको अच्छी तरह, अगर वो सूख गया तो उसको पहले खुरच के उतार लिया जाए, और फिर धो के उसको अच्छी तरह मल मल के, बेरी के पत्ते जो अभी झाग बनाते हैं जैसे साबुन झाग बनाते हैं, तो इसी तरह ही उसको मल के अच्छी तरह जो है वो धो लिया जाए, ताकि निशान का असर जो है वो जितनी हद तक उतर सके बेहतर है। लेकिन अगर 3-4 दफा धोने के बाद भी निशान का असर नहीं गया तो फिर वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाइजा की इबादत। तहारत के बगैर नमाज नहीं। दौरान हैज छूटने वाली नमाजों की कोई कज़ा नहीं, और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है औरतों के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने उन दिनों में औरतों की जो नमाजें छूटती हैं उनकी कज़ा जो है वो उनके ऊपर नहीं रखी हुई। आप इस चीज को अंदाजा कर सकती हैं कि अगर उन दिनों की नमाजें जो है औरतों के ऊपर वाजिब कर दी जाती हैं कि कज़ा अदा करें, तो ये कितनी भारी ये चीज हो जानी थी। फिर हाइजा और नमाज की कज़ा। अब इसमें यह है कि गुस्ल में देर करने की सूरत में फौत शुदा नमाजों की कज़ा जो है वो हाइजा देगी। और हैज शुरू होने से पहले नमाज में ताखीर की, इसका रूल ये आता है कि अगर आप ने नमाज का टाइम दाखिल हो गया है और आपने नमाज में ताखीर की है, आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो उस सूरत में मिसाल के तौर के ऊपर कि जोहर का टाइम दाखिल हो गया और आपने नमाज नहीं पढ़ी, और क्योंकि जोहर का टाइम थोड़ा लंबा भी होता है, तो आपको जोहर के टाइम के दरमियान में जाके आपको पीरियड्स आ गए। अब जोहर का टाइम तो स्टार्ट हो गया था, आपने नमाज नहीं पढ़ी और अब आपको हैज आ गया, तो लिहाजा अब आप जब तक आपका हैज खत्म नहीं होता तब तक तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगी, मगर जब आप गुस्ल करेंगी तो उस वक्त फिर आप उस नमाज की कज़ा दे देंगी। इसी तरह ही जब आपने हैज से फरागत हासिल कर ली है और आपने नहाने में ताखीर की है, तो उस वक्त अगर आपकी नमाज अगर कोई को टाइम आ पहुंच गया था जब आपने फरागत हासिल की थी हैज से, लेकिन आपने नहाने में ताखीर करने की वजह से आपके नमाज का वो टाइम गुजर गया है, तो वो नमाज भी फिर आपके ऊपर कज़ा होगी, उसको भी आपको उसके कज़ा जो होगी वो देनी होगी। अच्छा, रोजा जो है इफ्तार होने से अगर चंद मिनट पहले भी हैज आ गया तो आपका रोजा खत्म हो जाएगा, उस रोजे की आप कज़ा देंगी। आ, मतलब दूसरा, बाज लोग ये कहते हैं कि जवाल के बाद अगर हो गया तो आप रोजा पूरा करें, तो ऐसी कोई हमें नस नहीं मिलती। जैसे ही हैज आ गया, चाहे चंद मिनट पहले आ गया अफ्तारी से, आपका रोजा जो है वो टूट जाएगा और उस रोजे की आप कजा देंगी। तुलुए फजर से चंद मिनट पहले तोहर की निशानी देखकर रोजा रख सकती हैं और गुस्ल करके नमाज पढ़ सकती हैं। तो उसमें यह है कि अगर अगर आपने ये देखा है कि आप पाक हो गई हैं और अभी सहरी का टाइम और आपने सहरी खानी है, तो आप सहरी खा सकती हैं, लेकिन नमाज फजर से पहले आप गुस्ल कर लें, यानी कि फजर की नमाज आपने पढ़नी है, तो आप गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ सकती हैं।
सहरी खाने के बाद। फिर दौराने हैज छूटने वाले रोजों की गिनती पूरी करनी होगी और अगले रमजान से पहले रोजों की गिनती पूरी करनी चाहिए असूली तौर के ऊपर। अब अगर आप में से क्योंकि बाज दफा हमें ये चीजें पहले नहीं बताई जाती हैं और अक्सर खवातीन का यही मसला होता है कि उनके बहुत सारे रोजे जो होते हैं वो छूट 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 चुके होते हैं, बाज दफा प्रेगनेंसी में की वजह से या वीनिंग की वजह से छूट चुके होते हैं, तो वो काफी ज्यादा इकट्ठे हो चुके होते हैं। तो उस सूरत में यह है कि अगर आप इतनी ताकत रखती हैं तो आप रोजे रख लें। अगर आप इतनी ताकत नहीं रखती तो फिर आप रोजों का फिदिया दे सकती हैं। इसी तरह ही नमाज की तरह एतकाफ के लिए भी हालत तौहर में होना शर्त है। एतकाफ मस्जिद में होता है तो इसमें मुबाशरत भी मना है। वैसे रमजान की रातों में मुबाशरत जो है अल्लाह ताला ने हलाल की है, मगर अगर एतकाफ की हालत है तो उसमें फिर ये अमल भी मना है। मसनून एतकाफ के लिए रोजा शर्त है, रोजे के बगैर एतकाफ नहीं होगा। और अगर किसी ने नजर मानी हुई है किसी एतकाफ की तो उसको भी पूरा करना होगा। और नजर के बारे में क्या है कि नजर जो है वो पसंदीदा नहीं है नजर मानना, मगर अगर किसी ने नजर मान ली है तो फिर वो उसको पूरा करे। अगर किसी वजह से मस्जिद में ना कर सके तो कुफारा जो है फिर वो उसका अदा करेगा। नफली एतकाफ के लिए रोजा जो है वो शर्त नहीं है। सजदे तिलावत और सजदे शुक्र, सजदे तिलावत के लिए ना वुजू शर्त है ना, और ना तहारत जो है वो दलील से साबित है। इसी तरह सजदा शुक्र जब भी कोई खुशी की खबर मिलती है और तो फौरन सजदा किया जाता है, वो खुशी में आजिजी की इलामत है, इसके लिए भी वुजू या तहारत जो है वो शर्त नहीं है, तो लिहाजा हाइजा ये दोनों कर सकती है। अयाम हैज में कुरान, कोई मुस्तनद दलील हमें नहीं मिलती। दौरान हज आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हैज से आगाह किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तमाम काम करो जो हाजी करता है, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हाजी जो है वो तिलावत कुरान भी करते हैं, तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करने से मना फरमाया, बाकी सारे बाकी कहा कि वो तमाम काम कर सकती हो। तो कपड़े या आर्ट से कुरान को पकड़ा जा सकता है, डायरेक्ट अरेबिक टेक्स्ट को हाथ मत लगाएं। लेकिन यह है कि आप किसी ग्लव्स पहन लें या किसी कपड़े की आर्ट से उसको पकड़ा जा सकता है। मसाजिद ईदगाह और मजलिस मजालिस इल्म, मस्जिद में ठहरना ममनू है, मस्जिद से गुजरा जा सकता है। ईदगाह में तकबीरात कहने और दुआ में शिरकत का बाकायदा हुक्म है। और ईदगाह इसीलिए ईदगाह जो है वो पसंदीदा यही है कि वो खुले मैदान में अदा की जाए ईद की नमाज। तो आजकल अक्सर ईद की नमाज जो है मसाजिद में ही अदा की जाती है, तो उसमें फिर थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि जो हाइजा हैं वो उनके लिए अंदर जहाँ पर सफ़े लगी होती है उधर आना मुश्किल होता है। तो बहरहाल एक कोई जगह उनके लिए मुख्तस कर दी जाती है, मगर ये है कि पसंदीदा यही है कि ईद की नमाज जो है वो खुले मैदान में अदा की जाए। और हाइजा को बाकायदा तौर के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीस के मुताबिक ये आता है कि वो खवातीन भी निकलें और दुआ में शामिल हों। इल्म की मजालिस में भी शिरकत की जा सकती है। हैज और मनासिक हज, दौरान हज आयशा रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हैज से आगाह किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तमाम काम करो जो हाजी करता है, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। तो तवाफ जो है क्योंकि वो एक उसके लिए वुजू जो है वो फर्ज है। अगर दौरान तवाफ वुजू टूट जाता है तो वुजू दोबारा करना जरूरी है, और जहां से तवाफ टूटा था वजू, तो वहीं से तवाफ जो होगा उसको दोबारा किया जाएगा। इसीलिए ये तवाफ जो है वो नहीं किया जाएगा दौरान हैज। बाकी मनासिक किए जा सकते हैं और सई भी की जा सकती है। अ, सही जो है उसके लिए वुजू जो है वो शर्त नहीं, और हाइजा उसको कर सकती है। कुछ उलमा आज के उसमें ये कहते हैं कि चूंकि पहले जो सही की जो जगह थी वो मस्जिद के अंदर शामिल नहीं थी, तो इसीलिए अब उन्होंने सही जो है वो मस्जिद के अंदर उसको मस्जिद का हिस्सा बना दिया हुआ है। तो इसीलिए कुछ उलमा अब ये कहते हैं कि सही जो है वो भी वुजू के बगैर ना करे। हैज और हालत एहराम, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाइजा और नफासा, नफासा यानी जो हालत नफास में है, जब मीकात पर आ जाएं तो गुस्ल करें, एहराम बांधें, हज के तमाम मनासिक अदा करें सिवाय तवाफ के। अगर मिकात पर गुस्ल करना मुमकिन ना हो तो घर से गुस्ल करके निकल सकती हैं। ठीक है ना, मिकात का आपको पता है कि वो जगह है जहां से जो है एहराम बांधा जाता है।
پھر احرام کی پابندیاں، مثلا نقاب، دستانے نہ پہننا، صرف بھیڑ والی جگہ پر چھپانا، خوشبو یا مہندی نہ لگانا، جھگڑنے یا کسی کو اذیت دینے سے گریز کرنا، بال نہ توڑنا، ناخن نہ کاٹنا، تلبیہ کہنا، ٹھیک ہے، یہ سارے کام جو ہے حائزہ وہ کر سکتی ہے۔ بوجہ حیض رہ جانے والا عمرہ، حج تمتع کی نیت سے پہلا والا عمرہ بوجہ حیض چھوٹنے کی قضا واجب نہیں ہے۔ حج تمتع آپ کو پتا ہوگا، حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ وہ حج جس میں پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر احرام اتار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر دوبارہ حج کی نیت کر کے کیا جاتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حج تمتع کی ہی نیت زیادہ تر کی جاتی ہے، تو حج تمتع کی نیت سے اگر کوئی عورت گئی ہے اور اس کو حیض آ گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کا جو وہ عمرہ ہوگا پھر وہ ادا نہیں کرے گی، اور اس عمرے کی اس کو قضا جو ہے وہ واجب بھی نہیں ہے۔ حائزہ اگر با طہارت طواف افادہ کر چکی ہو تو اس کی قضا پر دم نہیں ہے، ٹھیک ہے، دم یعنی کہ اس نے قربانی دینی ہوتی، خون بہانا ہوتا ہے کسی جانور کا۔ تو اگر اس نے حائزہ نے اگر طواف افادہ کر دیا ہوا ہے تو اس پر پھر اس کی قضا نہیں آتی، یعنی کہ وہ جو ایک تو طواف افادہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو بالکل جاتے ہوئے جو طواف کیا جاتا ہے، وہ واپسی کا طواف جو ہے وہ فرض نہیں ہے، طواف افادہ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی حج و عمرہ کے لیے کافی ہے۔ دوران طواف حیض شروع ہونے پر طواف کو وہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ عبادت ہے، وہ اس کے لیے وضو شرط ہے، تو وہ وہیں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور دوران سعی جو ہے، حائزہ جو ہے وہ سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ حائزہ کے لیے سعی والی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ یہ مسجد میں شامل نہیں ہے۔ تو اصولی طور کے اوپر تو یہ مسجد میں شامل نہیں ہے، لیکن اب مسجد کا حصہ بن گیا ہے، تو کچھ علماء جو ہیں وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، مگر کچھ علماء ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ صحیح جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ حائزہ اور طواف وداع، بوجہ حیض طواف وداع چھوٹنے پر دم نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی آخری حاضری یعنی اللہ تعالیٰ یعنی طواف وداع ہو، مگر اس میں حائزہ کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے۔ اگر حائزہ اس کنڈیشن میں ہے تو پھر اس کے لیے تخفیف ہے اس میں۔ اب آگے تھے ازدواجی تعلقات، تو ازدواجی تعلقات حائزہ کے ساتھ جو ہیں یہ ممنوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہے، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو تکلیف ہے، سو ایام حیض میں دور رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں، جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے پر جو طریق ہے ان کے پاس جاؤ، خوش رکھنے کے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا ہوا ہے اور یہ حکم ہے، اور اس چیز کے اوپر اگر کوئی آتا ہے حائزہ کے پاس اس نیت سے کہ وہ جماع کرے، یا اپنی بیوی کی پشت کی طرف سے آئے، یا کسی کاہن کے پاس جائے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ نبوت کا کفر کیا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دوران حیض اس طرح کا تعلق استوار کیا تو اس کے اوپر اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی شدت میں ہمیں ازار بند، یعنی جس طرح ہم پیڈ باندھتے ہیں، تو اس کو باندھنے کا حکم دیتے، پھر ہم سے مباشرت کرتے، اور تم میں سے کون اپنی خواہش پر قابو پا سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر قابو تھا۔ مباشرت کا جو لفظ ہے یہ ہمارے لینگویج میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو سیکشول انٹرکورس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کو اصلاً جو ہے مباشرت کا جو لفظ ہے نا، یہ جو بشر سے نکلا ہوا ہے، بشر یعنی کہ سکن سے نکلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے سکن کے ساتھ سکن ملانا۔ تو اس میں جو ہوتا ہے اس سے مراد جو ہے وہ سیکشول انٹرکورس نہیں ہوتا، بلکہ
जिस तरह हक कर लेना, गले लगाना, वो इसमें शामिल है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका मतलब जो है वो गलत मत लिया जाए कि इसका मतलब यही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, वैसे ही साथ लेट जाना, गले लगाना, वो इससे मुराद है। फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शख्स के बारे में रवायत किया जो अपनी बीवी से जिमा करने आए जबकि वो हाइजा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक या आधा दिनार सदका करे। ठीक है। तो इस बारे में डिटेल ये आती है कि अगर किसी शख्स ने दौराने हैज इस तरह का अमल किया तो वो एक दिनार सदका करेगा, ये उसका कुफारा है। और अगर उसने उस वक्त जमा किया जब उसकी बीवी हैज तो फारिग हो गई थी लेकिन उसने भी गुस्ल नहीं किया था, तो ऐसी सूरत में वो आधा दिनार जो है वो सदका करेगा। और दिनार आपको पता है कि वो सोने का होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक दिनार की जो वैल्यू होगी वो निकाली जाएगी कि वो एक दिनार जो है वो उसकी कितनी कीमत बनती है, तो उस हिसाब से जो है वो अमाउंट जो है वो सदका की जाएगी। इब्ने अब्बास का ही एक और सही मौकूफ हदीस के मुताबिक इब्तदाई अयाम में खून का इखराज ज्यादा होता है, उसका उस गुनाह का कुफारा एक दिनार सदका, और हैज बंद होने के बाद गुस्ल से पहले इस गलती का कुफारा जो है वो आधा दिनार सदका है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी। अब एक दिनार जो है वो तकरीबन 4.25 ग्राम सोने के बराबर होता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। और कुफारा अदा करने के अलावा तौबा और आइंदा ऐसा ना करने का पुख्ता अहद भी है। फिर हाइजा और तलाक। हालत हैज में तलाक या ऐसे तोहर में तलाक जिसमें जमा किया हो जायज नहीं, लेकिन ये तलाक शुमार होगी, अलबत्ता देने वाले के हिस्से में नाफरमानी होगी। यानी कि अगर कोई हालत हैज में तलाक दे देता है या ऐसे तौहर में तलाक देता है, ऐसी पाकी की हालत में कि जिसमें उसने उसके साथ जिमा किया हो, तो उसमें तलाक देना जायज नहीं है, मगर तलाक तो हो जाएगी। और लेकिन ये कि देने वाला जो है उसने नाफरमानी की तो उसको नाफरमानी की सजा होगी। और फिर इसमें हमारे पास एक लंबी हदीस आती है जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को जबकि वो हालत हैज में थी एक तलाक दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो इससे रुजू करें, फिर इसे रोकें, यानी अपने पास रोकें हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इनके यहाँ इसे दोबारा हैज आए, फिर इसे आते हैं। यानी कि दोबारा हैज आने का मकसद क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि ये नहीं है, हत्ता कि वो फिर से अपने हैज से पाक हो जाए। इसके बाद अगर इसे तलाक देना चाहे तो तोहर के जमाने में दें, यानी कि तोहर के जमाने में दें, और इसके साथ मुजामत से पहले तलाक दें, कि फिर उसके साथ कोई रिलेशनशिप कायम ना करें, उससे पहले तलाक दें। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। इब्ने रमहा ने अपनी रिवायत में ये इजाफा किया है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह से जब इस मसला के बारे में सवाल किया जाता तो वो इनमें से किसी से कहते अगर तुमने अपनी बीवी को एक या दो तलाक दी है तो रुजू करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म दिया था, और अगर तुम इसे 3 तलाकें दे चुके हो तो वो तुम पर हराम हो गई है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सिवा किसी और शोहर से निकाह करे। तुमने इस हुक्म में जो इसने तुम्हारी बीवी की तलाक के बारे में तुम्हें दिया है नाफरमानी की है। ठीक है। तो अल्लाह की नाफरमानी उसी के लिए अहम होगी जो अल्लाह ताला के हुक्म को अहम समझता होगा, जबकि आजकल हम यही देखते हैं कि तलाक जो है वो अल्लाह ताला ने, अगर हम जब कुरान भी पढ़ते हैं और उसमें तलाक तलाक की जितनी भी आयत है आप जब उसको इकट्ठा करते हैं तो वो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको बयान किया हुआ है, आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इत्ता किल्ला उसमें कितनी दफा आता है, और कि वो उसको भी उस काम अमल को जो कि जायज अमूर में नापसंदीदा अमल है, मगर उसको एहसन तरीके के ऊपर करने का जो है वो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। मगर हम रियलिटी में क्या देखते हैं कि तलाक जब दी जाती है तो जितनी बदसलूकी और जितना बुरा मैक्सिमम किया जा सकता है लोग करते हैं। फिर ये है कि हाइजा को तलाक देना अगरचे मना है मगर ये वाकई होगी, यानी कि हो जाएगी। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि ये तलाक जो मैंने हैज में दी थी मुझ पर शुमार की गई। फिर मुतलका औरत का मतलब है जिस औरत को तलाक हो जाए। मुतलका औरत इद्दत के अयाम यानी 3 हैज शोहर के घर ही गुजारेगी। और तलाक वाली औरतें
3 हैज तक अपने तय रोके रहें। अगर वो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान रखती हैं तो इनको जायज नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ इनके शिकम में पैदा किया है इसको छुपाएं। और इनके खामिंद अगर फिर मवाफ़क़त चाहें तो इसमें वो इनको अपनी ज़ौजियत में लेने के लिए ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसा दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है। अल्लाह ताला गालिब और साहिब हिकमत वाला है। तो जब तलाक जो है वो दी जाती है तो औरत की जो तलाक की जो इद्दत की मुद्दत है वो 3 हैज है। 3 महीने नहीं है। 3 हैज में और 3 महीने में फर्क है। हैज की मुद्दत जो है वो हैज की मुद्दत 3 महीने से कम या ज्यादा हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि औरत को बाज दफा महीने में 2 दफा हैज आ जाए, या उसका ड्यूरेशन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो ये मुद्दत जो है 3 हैज की वो आगे पीछे हो सकती है। 3 महीने जो है वो नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है हमल और रज़ाअत। हमल यानी कि प्रेगनेंसी, रज़ाअत यानी कि वीनिंग, दूध पिलाना। और हमल का लुग़वी मानी है बोझ उठाना, और इस्तिलाह मानी इसका यह है कि पेट में बच्चा उठाना। रज़ाअत का लुग़वी मानी बच्चे को दूध पिलाना, और इस्तिलाही मानी शीरख्वार का किसी भी महरम या ना महरम का दूध। रज़ाअत की मुद्दत, माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म इस शख्स के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहता है। और दूध पिलाने वाली औरत को मुर्दा कहा जाता है। ये जो मुद्दत है ये 2 कमरी साल है। ये इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि 2 कमरी साल यानी कि जो इस लूनर कैलेंडर है ये मुद्दत उसमें आती है। और बाज लोगों से ये सुना गया है कि वो 2 साल से ज्यादा मुद्दत तक भी बच्चों को दूध पिलाती हैं। और उसके बहुत ज्यादा कुछ नुकसानात भी होते हैं, जिसमें से सुनने में ये आया है कि उन बच्चों के अंदर शहवत जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसकी हकीकत अल्लाह ताला जानता है। लेकिन यह है कि वो उसका अल्लाह ताला ने जब हमें मैक्सिमम जो लिमिट बता दी है उस लिमिट से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 2 साल मैक्सिमम मुद्दत है। 2 साल के बाद बच्चे से दूध छुड़वा लिया जाएगा। हमल की मुद्दत अमूमन हालत तौहर में रहती है, इल्ला ये कि हैजा ज्यादातर अगर हम औरतें जो हैं वो उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ना किया हो या कोई ऐसी हार्मोनल कोई मेडिसिन ना ले रही हो, तो जिस दौरान वो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उस दौरान उनको हैज नहीं आता, हालत तौहर में ही रहती हैं। और तमाम इबादत के साथ वो शोहर के लिए भी हलाल होती हैं। नफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, नफास के चंद दिन बाद दूध पिलाने वालियों को भी हैज बंद हो जाता है। डिपेंड करता है, बाज खवातीन को नहीं होता, लेकिन नॉर्मल अगर नॉर्मल पैटर्न में रखें, कोई मेडिसिन या कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ना करें तो उससे खून ये बंद हो जाता है। हामला या मुर्दा का रोजा, ज़ौफ या बच्चे की नशोमन का खतरा हो तो रुख्सत है, लेकिन बाद में कज़ा करें। यानी कि प्रेगनेंसी में अगर कमजोरी ज्यादा हो जाती है, बच्चे की नशोन्मा का खतरा है, तो उस सूरत में रोजा जो है उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में उसकी कज़ा होगी। औरत जो 1 साल हमर और 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत में गुजारे, मतलब बाज दफा ये होता है कि प्रेगनेंसी में भी औरत ने रोजा छोड़ा, बाद में 2 साल दूध पिलाया, उसमें भी फिर क्या है कि 3 साल के मुसलसल जो है वो रोजे छूट जाते हैं। कि बाज दफा वीनिंग में जब औरत दूध पिलाती है तो उस वक्त ज्यादा कमजोरी होना शुरू हो जाती है, और उसमें ज्यादा औरत को महसूस होता है। तो उस सूरत में ये क्या है कि फिर वो अपने रोजे जो है उनको छोड़ सकती है, और लेकिन उसको कज़ा बाद में देनी होगी। ऐसी औरत इब्ने अब्बास के कौल के मुताबिक फिद्या दे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु कहते हैं जब हमल वाली को अपने बारे में या दूध पिलाने वाली को अपने बच्चे के बारे में रमजान में हो तो वो रोजा ना रखें, बल्कि हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएं और इन रोजों की कज़ा दें। तो उस सूरत में क्या है कि फिर वो उनके मिस्कीन को खाना खिलाकर उन रोजों की कज़ा दे सकती हैं, क्योंकि 3 साल के फिर रोजे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो बाज़ औक़ात रखने जो है वो मुश्किल भी हो जाते हैं। बाज़ की सेहत इजाजत नहीं देती, और अगर इजाजत देती है तो वो उसको रोजों की कज़ा जो है वो कर सकती हैं, उनको करनी चाहिए।
फिदिया की मिकदार क्या होगी? हर रोजे के बदले किसी एक मस्कीन का एक वक्त का खाना होगा। और ये अहले सरवत अपनी वसत के मुताबिक देना चाहें तो कुरान के मुताबिक इनके लिए अच्छा है। ये फिदिया एक ही मस्कीन को तमाम रोजों का या 30 मस्कीनों को एक वक्त में दिया जा सकता है। अगर वो औरत खुद मिस्कीन और मोहताज है तो इसके जिम्मे कुछ नहीं। यानी कि पहली बात तो ये है कि ये जो खाना जो होगा ये साहब हैसियत जो है उसके अपने अपने लेवल के मुताबिक होगा। दूसरा ये है कि वो अगर वो ये भी कर सकते हैं कि एक ही दिन में 30 मस्कीनों को बुला के तो उनको खाना खिला दिया जाए या उनको दे दिया जाए। या ये है कि किसी एक ही मस्कीन को 30 दिन तक खाना खिलाया जाए। तो वो दोनों तरह से जो है ये चीज पूरी की जा सकती है। फिर है इस्कात हमल, यानी अबॉर्शन और नफास। इस्काते हमल से मुराद ऐसा अमल जिसके दौरान माँ के रहम में मौजूद जिनीन रहम से खारिज हो जाए। ये अमल बच्चे की मौत का सबब बनता है। तिब्बी इस्तिलाह में रहम से हमल का कबल अज वक्त खारिज होना इस्कात कहलाता है। हुज़ैफा बिन असयद गफारी रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब नुतफे पर तीसरे मरहले की 42 रातें गुजर जाती हैं तो अल्लाह ताला इसके पास एक फरिश्ता भेजता है। वो इसकी सूरत बनाता है, इसके कान, आंखें, खाल, गोश्त और इसकी हड्डियां बनाता है। फिर कहता है मेरे रब ये मर्द होगा कि औरत? फिर तुम्हारा रब जो चाहता होता है वो फैसला बताता है और फरिश्ता लिख लेता है। फिर वो कहता है ए मेरे रब इसकी मुद्दत हयात कितनी होगी? वो फिर तुम्हारा रब जो इसकी मशीयत होती है बताता है और फरिश्ता लिख लेता है। फिर वो फरिश्ता कहता है ए मेरे रब इसका इसका कितना होगा? तो तुम्हारा रब जो चाहता है वो फैसला बताता है और फरिश्ता लिख लेता है। फिर फरिश्ता अपने हाथ में सहीफा लेकर निकल जाता है, चुनाचे वो शख्स किसी मामले में ना इससे आगे बढ़ता है ना इससे कम होता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो ये एक जो है इस हदीस में हमें चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व मसदूक ने फरमाया, तुम में से हर एक शख्स का मादा तखलीक 40 दिन तक इसकी माँ के पेट में इकट्ठा किया जाता है। फिर वो इतनी मुद्दत यानी 40 दिन के लिए अलका यानी जोंक की तरह रहम की दीवार के साथ चिपका रहता है। फिर इतने ही मुद्दत के लिए मुद्गा की शक्ल में रहता है जिसमें रीढ़ की हड्डी के निशानात दांत से चबाए जाने के शक्ल की तरह के मुशाबा होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है जो 5वें महीने यानी कि न्यूरोसेल यानी दिमाग की तख्लीक हो जाने के बाद इसमें फूंकता है। और इसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि इसका रिज्क, इसकी उम्र, इसका अमल और ये कि वो खुश नसीब होगा या बदनसीब लिख लिया जाए। मुझे इस जात की कसम जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम में से कोई शख्स अहले जन्नत के से अमल करता रहता है यहाँ तक कि जब इसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश्त फासला रह जाता है तो अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखा हुआ इस पर गालिब आ जाता है और वह अहले जहन्नम का अमल कर लेता है और इस जहन्नम में दाखिल हो जाता है। और तुम में से कोई एक शख्स अहले जहन्नम के अमल करता रहता है हत्ता कि इसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश्त फासला रह जाता है तो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक लिखा हुआ इस पर गालिब आ जाता है और वह अहले जन्नत का अमल कर लेता है और इस जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से हमेशा हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा जो ईमान पर करे। हम में से कोई भी नहीं जानता और हम दूसरों को जज करते रहते हैं जबकि हमें अपने ऊपर ही नजर रखनी चाहिए। तो इसका लुबे लुबाब क्या है कि पहला दौर जो है जो पहले 40 डेज जो होते हैं वो नुतफा होता है। दूसरे जो 40 दिन होते हैं वो अलका होता है। और उसके बाद जो अगले जो दिन है 40 दिन जो है वो मुदगा होता है। ठीक है, जिस मुदगा होता है जिसमें उसकी जो हड्डियां और वो एक जो उसका जो है वो पूरे एक तरह की जो बॉडी होती है छोटी सी वो बन जाती है। चौथा दौर जो है जिनीन के 4 माह मुकम्मल होने पर आजाद जाहिर होते हैं, तब इसके बाद रूह जो होती है वो फूंक दी जाती है। इसकात की किस्म यानी कि एबॉर्शन की किस्में स्पॉन्टेनियस यानी कि जो खुद ब खुद हो जाती है, और इंड्यूस्ड यानी कि जो किसी वजह से जो है वो होती है। जायज है कि या नाजायज? औरत की जान या बच्चे की मौत का हकीकी खतरा हो
बास कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आ, ये डॉक्टर्स बता सकते हैं कि जिसमें बहुत ही ज्यादा जान का अगर वाकई ही खतरा है, क्रिटिकल कंडीशन है औरत की, तो उस सूरत में जो है ना ये जायज है, बहुत रेयर कंडीशंस में। और उसमें जो है बच्चे की जान का भी खतरा है और औरत की जान का भी खतरा है, तो वो अर्ली उसमें बास औरतों की कंडीशन ऐसी होती है कि वो प्रेगनेंसी को वो नहीं कैरी कर सकती। तो उस सूरत में जो है ना ये जायज है। ऐसी सूरत में ना दियत है ना कुफारा। दियत क्या होती है? दियत होती है कि अगर किसी से किसी का कत्ल हो गया है, तो उस सूरत में उसकी जान के जो है बदले में दियत अदा की जाती है, या कुफारा या तो कसास होता है या दियत होती है। तो दियत जो होती है वो माल दिया जाता है। तो उस सूरत में, ऐसी सूरत में कि जब औरत की जान का खतरा है, तो उस सूरत में उसको अबॉर्शन करवाना पड़ा है, तो उस सूरत में क्या होगा? दियत भी नहीं होगी और कुफारा भी नहीं होगा। फिर क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर माशरे में ये हमें सुनने को मिलता है कि अगर 4 महीने से पहले किसी ने अबॉर्शन करवा दिया तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उस अरसे तक कोई आज़ा नहीं बने होते और उसमें रूह नहीं फूंकी जा रही गई होती, तो लिहाजा ये गुनाह नहीं है। हालांकि ऐसी कोई भी हमें जो है वो इसकी रियलिटी नहीं मिलती। प्रेगनेंसी जैसे ही हुई, अगर उसको किसी भी तरह से उसको अबॉर्ट करवाया गया, उसको जाया करवाया गया, तो वो कत्ल के मुतरादिफ ही होगा, वो एक जान को कत्ल करने के मुतरादिफ ही होगा। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 151 में कि लोगो आओ, मैं तुम्हें वो चीज पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी है। इनकी निस्बत इसने इस तरह इरशाद फरमाया कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ना बनाना और माँ बाप से बदसलूकी ना करना, बल्कि सलूक करते रहना। नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल ना करना, क्योंकि तुमको और इनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा इनके पास न फटकना, और किसी जान को जिसके कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कत्ल ना करना, मगर जायज तौर पर इन बातों का वो तुम्हें इरशाद फरमाता है ताकि तुम समझो। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ क्लियर क्लियर जो है ये चीजें हम फरमा दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन इस वक्त तक अपने दीन के बारे में बराबर कुशादा रहता है जब तक नाहक खून ना करे। जहां नाहक खून किया तो मगफरत का दरवाजा तंग हो जाता है। और इसमें मतलब हम लोग जब ये वाली चीजें सुनते हैं तो हमारा आ, जाता है, ज्यादातर ध्यान जाता है कि हम लोग जो कत्ल कत्लो गारत गरी, या किसी ने कोई लेके गन लेके या पिस्टल लेके किसी को कत्ल कर दिया या इस तरह कर दिया। लेकिन ये वाले उमूर जो हैं, अब किसी औरत ने डेलिब्रेटली अबॉर्शन करवाया विदाउट एनी रीजन, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, कोई उसको कोई ऐसा खतरा नहीं था, तो ये चीज भी उसमें आएगी। इसके अलावा और कितनी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें पता भी नहीं चलता और ऐसा कोई अमल हो जाता है, जिसमें एक बच्चे जो होते हैं जो कि अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए होते, और उनको अक्सर लोग जो हैं वो ड्राइविंग के लिए उनको हाथों में गाड़ियां, और वो भी 4 व्हील ड्राइव्स, बाज दफा जो हैं वो 4 व्हीलर्स पकड़ा देते हैं या बाइक पकड़ा देते हैं। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि बच्चे जो भी बिल्कुल यंग हैं, जुवेनाइल हैं, तो उन्होंने उनकी उनकी से जब वो ड्राइविंग उन्होंने की है तो गाड़ी उनसे बेकाबू होगी, और उनकी जद में कोई भी जो है जान आ गई, और वो जो है उसका वो वहां पर मौके पर ही डेथ होगी। अब किसके ऊपर इस चीज का जो है वो इल्जाम जाएगा? इसके अलावा हम देखते हैं अब तो किसी हद तक कुछ पाबंदी हुई हुई है, मगर ये जो काइट फ्लाइंग होती है, जो ये पतंगबाजी की जाती है, उसमें जो डोर जो इस्तेमाल की जाती है, और उस डोर से कितने ही हमारे यहाँ हादसे जो हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, पता ही नहीं चलता। और वो डोर ऐसी वो होती है कि वो गले पर फिर गई और मौके पर ही जो है वो इंसान जो है तड़प तड़प कर मर गया। तो उसके पीछे कौन लोग शामिल होंगे? सिर्फ उड़ाने वाला तो उसमें शामिल नहीं होगा, वो सारे लोग उसमें शामिल हैं कि जो उसको खरीद कर लाए, जो उसको बना रहे हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल हैं। तो हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों से अगर किसी
کی جان چلے گی تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جو گناہ کبھی معاف ہی نہیں ہوگا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک بے گناہ انسان کا قتل. تو ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی ایسا کوئی پوائنٹ ہو تو آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا. میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی. پھر کیا ہے، بیسیکلی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں رزق میں کمی کا خوف. قرآن میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. بیٹی کی پیدائش کا خوف کہ اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ کتنا زیادہ اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، ہم ایسے کہتے ہیں کہ صرف ہمارے معاشرے میں، یہ یورپ میں بھی ہے، یہ باہر کے ملکوں میں بھی ہے کہ وہاں پر بیٹیوں کو جو ہے ان کو اس وجہ سے جو ہے ابورٹ کروا دیا جاتا ہے. اس کی ریشو انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ چائنا میں بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اس بچی سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم کس سزا میں تمہیں جو ہے قتل کیا گیا. تو وہ کیا کہے گی؟ جس پیرنٹ نے اس کو مارا ہے، جس ماں نے اس کو ابورٹ کروایا ہے، تو وہ انسان کیا کہے گا؟ پھر شوہر کی نافرمانی کا خوف. بعض دفعہ فیملی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، سسرال والوں کا پریشر ہوتا ہے، گھروں کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر ایک چیز یہ بن چکی ہوئی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے جو عورت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ بعض دفعہ ایسے حالات سے گزر رہی ہوتی ہے، اتنی پریشان ہوتی ہے، اتنی سٹریس میں ہوتی ہے کہ وہ مجبور اس کو کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس عمل سے گزرے. تو یہ ساری وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. پھر کیا ہے کہ جنین کی تکفین اور تدفین، یعنی کہ اس کا کفن دفن اور اس کو کس طرح سے دفنایا جائے گا. 4 ماہ سے کم ہو تو نہ تو غسل ہے نہ جنازہ. یعنی کہ اگر وہ جو ارلی کسی کا ابورشن ہو گیا تو اس کی مدت اگر 4 مہینے سے کم ہے تو اس کا نہ تو کوئی غسل ہوگا نہ ہی کوئی جنازہ ہوگا. کیونکہ وہ اس ٹائم ایک مدغہ کی شکل میں ہوتا ہے، ایک لوتھڑا ہی ہوتا ہے، ایک لمپ ہی ہوتا ہے. 4 ماہ کے بعد اس کے جو لمز وغیرہ جو ہیں وہ بنتے ہیں. 4 ماہ سے اوپر اگر ہے اور اس کی مطلب وہ ڈلیور ہوا ہے تو اس کا پھر غسل اور جنازہ واجب ہے. پھر اب یہاں پر ناجائز اسقاط جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. سچی توبہ کے ساتھ دیت اور کفارہ واجب ہے. کہ ڈیلیبریٹلی کسی نے کروایا ہے اور تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے کیونکہ یہ ایک جان کا قتل ہے، اور اس کے ساتھ سچی توبہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے. اب کفارہ کتنا ہوگا؟ سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ ایک مومن کا قصاص 100 اونٹ، اور کفارہ ایک غلام آزاد یا 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں. دیت کی صورتیں اونٹ ہے، سونا ہے، چاندی، مال مویشی رقم. اور یہ حکومت وقت بھی اس کو کرتی ہے، ڈیفائن بھی کر دیتی ہے. مالی حیثیت دیکھ کر بھی جو ہے اس کو وہ طے کیا جاتا ہے. کفارہ یعنی کفر سے ہے، جس کا مطلب ہے کور کر دینا، ڈھانپنا. تو یہ گناہ کو ڈھانپ کر دیتا ہے، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت سخت چیز ہے. 2 مہینے کے روزے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور دیت اٹ سیلف، مطلب اونٹ جو ہے وہ اس کو آپ ایک کسی بھی مہنگی گاڑی سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اس وقت کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو آج کی اگر آپ اس کی ویلیو نکالیں گے تو وہ قیمت کہاں تک جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ 120 دن سے پہلے یعنی 4 مہینے سے پہلے اور اس کے بعد اس قاطع حمل. علماء کا اتفاق ہے کہ پہلی صورت میں صرف توبہ استغفار لازم ہے، دیت اور کفارہ نہیں. دوسری صورت میں صرف توبہ استغفار کے ساتھ دیت اور کفارہ لازم ہے، جس کی بھی ہم نے ابھی پہلے بات کی ہے کہ دیت کتنی ہوگی اور کفارہ کتنا ہوگا. وہ سیکنڈ کنڈیشن میں یہ لازم ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے. پہلی کنڈیشن میں توبہ استغفار لازم ہے، دیت اور کفارہ نہیں ہے. بنی حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت پر پتھر پھینک مارا، جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے یعنی جنین سمیت مر گئی. وہ پریگنٹ تھی اور وہ عورت ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر کیا ہوا کہ مقتولہ کے رشتہ دار مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہوگی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ، یعنی عاقلہ تک اس کے وہ رشتہ دار جو وراثت جو وارث ہوتے ہیں، عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار
जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उनको जिम्मेदार जो है वो जिम्मा जो है उसके वाजिब करार दिया गया, यानी कि उसका जो खून बहाव होगा, खून बहा यानी दियत है। तो खून बहा जो होगा वो उस जो औरत जो कत्ल हो गई है उसको, ये जिस औरत ने कत्ल किया है उसके रिश्तेदार जो हैं वो अदा करेंगे उस औरत के रिश्तेदारों को। और जनीन की जो दियत है वो हमने जैसा कहा कि एक गुलाम या लोंडी या 5 ऊंट, जो कि एक औरत का 10वां हिस्सा है। कत्ले खता क्या होता है कि जिसमें जानबूझ के नहीं, एक अनजाने में एक गलती हो गई और उससे गलती से जो है कोई शख्स जो है वो मर गया। तो कत्ले खता में मर्द की दियत जो है वो 100 ऊंट और औरत की दियत 50 ऊंट है। और कुफारा जो है एक गर्दन आजाद करना, गर्दन आजाद कराने से मुराद है किसी किसी को गुलाम या लोंडी को आजाद कराना, या 2 माह के मुसलसल रोजे रखना। आजकल क्योंकि गुलाम और लोंडी जो है वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते। आ, बेशक के बहुत सारी कंडीशंस हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसी मौजूद हैं जहां पर लोगों को स्लेव्स बनाया जाता है, उनको चाहे वो सेक्स स्लेव्स हों या चाहे वो किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल होते हों। तो लेकिन उस तरह की जो कंडीशन आजकल जो है वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लिहाजा वो कंडीशन उस तरह से नहीं आएगी। लेकिन इसमें फिर 2 माह के मुसलसल रोजे जो हैं वो शामिल हैं। 6 माह और इसके बाद 6 माह और इसके बाद बात पर मुकम्मल दियत है, यानी कि अगर छठा महीना है और उसमें ऐसा अमल हुआ है तो उसके बाद उस पर दियत जो है ना वो पूरी की पूरी लागू होगी। ठीक है। यानी कि एक गुलाम या लोंडी जो है या लोंडी या 5 ऊंट जो कि एक औरत का 10वां हिस्सा है, ये जिनीन की मुद्दत है। लेकिन अगर उसकी मुद्दत 6 माह है प्रेगनेंसी की, तो उस सूरत में फिर पूरी दियत जो है, यानी कि अगर वो जो मर्द की दियत है वो है और औरत की दियत जो है ना वो 50 ऊंट है, वो पूरी की पूरी लगेगी। दियत में कौन कौन शामिल है? जनीन के कातिल, जनीन के कत्ल में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, मतलब औरत भी है, औरत खुद भी शामिल है, मर्द भी है, डॉक्टर, दाया, तो ये सब दियत देंगे। ठीक है। दियत जनीन के वारिसों में तकसीम होगी। अब यह है कि दियत तकसीम कहाँ होगी? दियत जो जनीन के, नहीं कि जो जिस बच्चे को जाया किया गया है उसके जो वारिस हैं उसमें वो दियत जो है वो तकसीम होगी। अगर कातिल खुद माँ है तो फिर बाप को दी जाएगी, और अगर बाप और माँ दोनों शामिल हैं तो फिर वो रसा में तकसीम होगी। फिर जो कातिल को फिर नहीं दी जाती, क्योंकि कातिल जो है वो मकतूल का वारिस नहीं बनता। अगर किसी इंसान ने, अगर किसी बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है तो वो अपने बाप का वारिस नहीं बनेगा। ये एक रूल है, कातिल जो होता है वो मकतूल का वारिस नहीं बनता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कातिल के लिए कुछ नहीं, और अगर मकतूल का कोई वारिस ना हो तो सबसे करीब तरीन आदमी इसका वारिस होगा। कातिल को विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। 120 दिन से पहले अगर अबॉर्शन हो गया तो तखलीक वाजे ना होने की सूरत में औरत इसको अपनी आदत के मुताबिक हैज शुमार करेगी, इतने रोज नमाज से रोजा से रुकी रहेगी। अगर खून उसके बाद भी जारी रहा तो मुस्तहाजा के हुक्म में, कि बाज़ दफा होता है ना कि मतलब 1 महीना नहीं आए पीरियड, या 2 महीने नहीं आए, या अर्ली अबॉर्शन हो गया, वो खुद ही निकल जाता है, खुद ही जो है वो अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो हैज के हुक्म में होगा, और जब वो वहां से उसको वो साफ हो जाए तो वो फिर अपना अपनी नमाज रोजा जो अपनी इबादत जो है वो शुरू कर देगी। वालिदैन के लिए खुशखबरी। मास बिन जबल रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस जात की जिसमें मेरी जान है, ना तमाम बच्चा, यानी कि वो जो अबॉर्ट हो गया था बच्चा, खुद से जो अबॉर्ट हो गया, तो वो अपनी माँ के आंवल से, आंवल के जरिए से खींच कर जन्नत में लेके जाएगा, ताकि जबकि इसने इस पर सब्र किया हो। यानी कि वो बच्चा जो है जो अर्ली अबॉर्ट हो गया, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगी, अभी तक पूरा बना भी नहीं था, तो वो भी बच्चा जो है वो अपनी माँ को खींचेगा उस रोज और उसको जन्नत में लेके जाएगा। शर्त यह है कि उसकी माँ ने उसके अबॉर्शन पर, उसके हमल गिरने पर सब्र किया हो। और सब्र जो होता है वो सदमे की पहली चोट पर होता है।
नफास बच्चे की विलादत की वजह से औरत के रहम से निकलने वाला खून नफास कहलाता है, और ये भी हैज की तरह नापाकी की हालत है। इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 40 दिन है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि नफास वाली औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जचगी के बाद 40 दिन या 40 रातें बैठी रहती थीं, और चेहरे की रंगत बदल जाने यानी छाइयां पड़ जाती हैं बाज दफा कुछ औरतों को। तो उसकी वजह से हम अपने चेहरों चेहरों पर वर्ष मलती थी। ये कोई जिस तरह उपटन नहीं होता, ये कोई वो थी कि वो चेहरा उस टाइम पे, क्योंकि सारी बात है डिलीवरी की वजह से जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से बाज दफा चेहरे के ऊपर छाइयां पड़ जाती हैं, तो वो अपने फिर चेहरे की रंगत को सही करने के लिए ये चीजें भी मलती थी। कहने का मकसद ये है कि 40 मैक्सिमम जो टाइम है वो 40 दिन या 40 रातें हैं जिसमें औरतें जो थी वो इंतजार करती थी, और उस टाइम नमाज रोजा नहीं करती थी। बच्चे की विलादत से पहले सफेद या मटियाला मादा का इखराज हो, खा वो वाटर बैग लीक हो जाए, वो फट जाए, या अगर दर्द ज़ै यानी कि लेबर पेन के साथ हल्का हल्का खून का इखराज हो, तो ये नफास में ही शामिल है। अगर डिलीवरी का टाइम अगर पास आ गया है, वाटर बैग भी लीक हो गया और लेबर पेन्स भी आ रहे हैं, तो उस दौरान अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो फिर नफास में ही शुमार होगा। 40 दिन के अंदर नफास का खून जब भी रुक जाए, हाँ कम दिन हो या ज्यादा कम दिन ही क्यों ना हुए हो, नफासा गुस्ल करके इबादत शुरू कर देगी। अगर खून रुकने के चंद दिन बाद दोबारा शुरू हो जाए तो ये नफास होगा। खून अगर 40 दिन के बाद भी ना रुके तो देखा जाएगा कि खून कब किन सिफात के साथ आ रहा है। हैज की तरह बदबूदार गाढ़ा स्याही मैल, तो ये नापाकी के दिन है, ये हैज हो सकता है। अगर नहीं तो फिर वो नफास वो इस्तिहाजा में शुमार होगा। बाज़ दफा ये होता है कि नफास के दौरान ये होता है कि ब्लीडिंग चंद दिन होती है, 10 12 15 20 दिन होती है, फिर गैप आ जाता है, और फिर थोड़े दिन उसके बाद हुई, फिर गैप आकर फिर रुक गई, 40 दिन से पहले ही खत्म हो गई, फिर 40 दिन के बाद दोबारा आना शुरू हो जाती है। और वो पीरियड्स होते हैं बाज दफा। तो उसको फिर उसकी वो रंग और उसकी बदबू से पहचान लेगी कि अगर वो वही है तो फिर अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हालत निफास में निकाह, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। इसमें आता है कि सबिया ने इन्हें बताया कि वो साद बिन खोला की बहन है, वो बनी आमिर बिन लोई में से थे और बदर में शरीक होने वालों में से थे। हजरतुल विदा के मौके पर वो फोत हो गए जबकि वो हामला थीं। इनकी वफात के बाद ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जब वो निफास से पाक हुई तो उन्होंने निकाह का पैगाम देने वालों के लिए कि इन्हें इनकी इद्दत से फरागत का पता चल जाए सिंगार किया। बने अब्दुद्दार का एक आदमी जो था वहां से उनके यहाँ आया तो उनसे कहा, क्या बात है, मैं आपको बनी संवरी देख रहा हूँ, शायद आपको निकाह की उम्मीद है। अल्लाह की कसम आप निकाह नहीं कर सकती हत्ता कि आप पर 4 महीने 10 दिन गुजर जाएं। सबिया ने कहा कि जब इसने मुझे ये बात की तो मैं शाम के वक्त अपने कपड़े समेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आप से इसके बारे में दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा दिया कि मैं इसी वक्त हलाल हो चुकी हूँ जब मैंने बच्चा जना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मैं मुनासिब समझूं तो मुझे शादी करने का हुक्म दिया। इब्ने शहाब ने कहा कि मैं कोई हरज नहीं समझता कि वज़ा हमल के साथ ही चाहे वो अपने निफास के खून में हो औरत निकाह कर ले, अलबत्ता इसका शौहर इसके पाक होने तक इसके करीब ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि औरत की जो बेवा की इद्दत जो है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत जो है वो बच्चे की पैदाइश के साथ ही जो है वो खत्म हो जाती है, और वो हालत निफास में भी निकाह कर सकती है। लेकिन शर्त ये होगी कि जब तक वो उस हालत तोहर में जाएगी ना, उसका शौहर उससे ताल्लुक कायम नहीं करेगा। फिर यहाँ से हमें एक और भी चीज पता चलती है कि बनाव सिंघार जो है वो उन्होंने किया जब वो उन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद, ताकि वो इस चीज की अलामत थी कि वो अब निकाह कर सकती हैं। सबिया असलमिया ये वही है, अपने शौहर की वफात के बाद चंद दिनों तक हालत निफास में रहीं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उन्होंने निकाह की इजाजत मांगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाजत दी और उन्होंने फिर निकाह किया। इस्तहाजा, इस्तहाजा क्या होता है? हैज के दिनों के अलावा भी खून का जारी रहना। ये हैज की तरह नजिस नहीं है।
ये आजिल नामी रग के खुलने से निकलता रहता है। बाज दफा बाज खवातीन को किसी बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका खून या तो जैसे हैज खत्म होता है उसके बाद भी आता रहता है, या दरमियान में कुछ दिनों के लिए आ जाता है फिर रुक जाता है। बाज दफा खवातीन को मुसलसल ही ब्लीडिंग होती रहती है, उनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। बाज खवातीन को ऐसे हल्का फुल्का दाग लगता रहता है। तो हैज के अलावा जब ब्लड आएगा तो वो जो होगा फिर इस्तिहाजा में शुमार होगा। ठीक है। फातिमा बिनते, अच्छा इसमें एक और भी चीज ये देख लें कि बाज दफा जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको बाज दफा तीसरा महीना है, चौथा महीना है, तो हल्का सा कभी कोई दाग लग जाता है। तो एक तो ये कि वो डॉक्टर से जरूर रुजू कर लें, लेकिन ये है कि ऐसी सूरत में अगर उनका अभी हमल जो है वो कायम है और अभी जाहिर बात है अभी डिलीवरी का टाइम नहीं आया, तो उस सूरत में अगर उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको इस तरह का कोई स्टेन लगता है तो वो नापाकी में शुमार नहीं होगा। हाँ ये है कि वो उस जगह को, उस कपड़े को धो लें, साफ कर लें, और वजू करके नमाज, वजू जो है ना उनको फिर करना पड़ेगा हर नमाज के लिए, अगर उनको इस तरह का कोई मसला है तो वजू करके नमाज पढ़ सकती हैं। फातिमा बिनते कैस इस तरह से मरवी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बताया कि मुझे इस्तिहाजा यानी बेकायदा खून आता है, यानी कि उसका कोई टाइम नहीं है, वो आता है। तो उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया ये तो एक रग का खून है, जब तुझे हैज का खून आए नमाज छोड़ दे, और जब हैज आना बंद हो जाए तो नहा धोकर नमाज शुरू कर दे, खा इस्तिहाजा का खून आ ही रहा हो। अब यह है कि उसकी पहचान क्या होगी। इसमें हमारे पास एक लंबी हदीस आती है हमना बिनते जहश से, जो कि जैनब बिनते जहश की बहन थी। हमना ने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा और बड़ा सख्त इस्तिहाजा होता था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई आपसे मसला पूछूं ताकि और आपको अपनी हालत बताऊं। तो मैंने आपको अपनी बहन जैनब बिनते जहश के घर पाई। जैनब बिनते जहश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी, तो हमना उनकी बहन थी। तो कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, "ए अल्लाह के रसूल, मैं ऐसी औरत हूँ कि मुझे बहुत सख्त और शदीद इस्तिहाजा होता है, आप इसके मुतालिक क्या आपका इरशाद है?" तो इसने मुझे नमाज और रोजे से भी रोक रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ख्याल है कि तुम रख लिया करो, इससे खून रुक जाएगा। हमना रजनीता ने पूछा ये इससे ज्यादा होता है? यानी कि उन्होंने कहा कि तुम रुई या कोई कपड़ा रख लिया, रुई रख लिया करो। तो उन्होंने कहा कि इससे कैसे खून रुक जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि कपड़ा बांध दिया करो। तो मैंने कहा कि ये इससे भी ज्यादा होता है, मतलब मेरी तो जो ततली धार बहती है, यानी कि ब्लड जो था वो पानी की तरह बहता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ, इनमें से जो भी इख्तियार कर लो काफी है। अगर दोनों की हिम्मत हो तो ये मालूम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दरअसल शैतानी कचोका है। बस तुम हर महीने अल्लाह के इल्म के मुताबिक 6 या 7 दिन हैज के शुमार करो, फिर गुस्ल कर लो। हत्ता कि जब तुम अपने आप को पाक साफ समझो तो 23 या 24 दिन रात नमाज पढ़ती रहो और रोजे रखो, तुम्हें ये काफी है। और हर महीने वैसे ही किया करो जैसे कि आम औरतें अपने हैज और तोहर के दिनों में करती हैं। दूसरी सूरत यह है, अगर हिम्मत हो तो जोहर को मौखर करो और असर को जल्दी करके इन दोनों को जमा कर लो और इनके लिए एक गुस्ल करो, फिर मगरिब और को मौखर करके ईशा को जल्दी करते हुए एक गुस्ल कर लो और इन दोनों को जमा कर लो, और फजर की नमाज के लिए भी एक गुस्ल कर लो। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, यानी कि आपको फिर 3 दफा गुस्ल करना पड़ेगा। अगर ये कर सकती हो तो कर लिया करो और रोजे भी रखती रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दूसरी सूरत इन दोनों में से मेरे नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह का कहना है कि इस रिवायत को अमर बिन साबित ने इब्न अकील से नकल किया और हमना ने कहा यह सूरत मेरे नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। इस कौल को इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बताया, बल्कि हमना का कौल है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि दूसरी सूरत जो है ये बाद में, खैर इसमें और भी हमें हदीसें मिलती हैं कि उसमें यही है कि अगर ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है, कोई पैड या ऐसा का रखा जा सकता है, और यह है कि हर नमाज से पहले जो है वो वुजू किया जाएगा।
اب وہ हबैश की बेटी फातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाजा की बीमारी है, इसलिए मैं पाक नहीं रहती, तो मैं क्या नमाज छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये एक रग का खून है, हैज नहीं है। जब तुझे हैज आए तो नमाज छोड़ दे, और दिन गुजर जाए तो अपने बदन से खून को धो डाल, फिर नमाज पढ़। हशाम कहते हैं कि बाप उर्वा ने कहा, हजूर ये भी फरमाया, हजूर ने ये भी फरमाया कि फिर हर नमाज के लिए वजू कर, यहाँ तक के वही हैज का वक्त फिर आ जाए। अच्छा, अब पहचान जो है वो क्या है? आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि फातिमा बिनत हबैश को इस्तिहाजा आता था, तो इनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज का खून जो है वो स्याह होता है और पहचाना जाता है। जब ये खून हो तो नमाज से रुक जाओ, और जब दूसरा खून इस्तिहाजा हो तो वजू करके नमाज पढ़ो। नॉर्मली हैज का जो खून होता है वो आम खून के मुकाबले में उसका रंग जरा तेज होता है, और वो डार्क साइड के ऊपर ज्यादा होता है, उसमें स्मेल भी होती है, तो वो पहचाना जाता है। अगर किसी ऐसी कंडीशन में है कि वो खून औरत से पूरा महीना उसको अगर ब्लीडिंग होती है और पहचाना ही नहीं जा रहा, तो फिर वो कोई भी दिन जो है वो मुख्तस कर सकती है। जिस सर्जरी के बाद हैज मुमकिन नहीं तो वो हैज नहीं, अगर मुस्तहाजा को सर्जरी के बाद खून है तो अलामत देखकर पहचानेगी। जिस तरह यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है तो उस सूरत में फिर मेंसेस नहीं आते, तो अगर उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो फिर इसमें हैज में शुमार नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही खून होगा, इस्तिहाजा होगा। उसको फिर क्या है कि वजू करके नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी। अच्छा जी, लिकोरिया या जनाबत। लिकोरिया जो है ये रुतूबत है जो बास खवातीन को कसीर मिकदार में आती है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। और ये बाज दफा होता है कि हमारी बाज दफा कुछ खुराकों की वजह से भी बाज दफा आ जाती है। बाज दफा जिन खवातीन का लोअर एब्डोमेन एरिया जरा ज्यादा हैवी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बाज खवातीन को ये इस रुतूबत का डिस्चार्ज जो होता है ये ज्यादा होता है। अच्छा, लिकोरिया जो है वो नजिस नहीं होता, लेकिन ये वजू तोड़ देता है। इसका अब इसमें क्या है कि अगर मुसलसल इखराज है तो वो इस्तिहाजा के हुक्म में, यानी कि हर नमाज के लिए वजू करेगी। अगर मुसलसल नहीं है, कभी कभी होता है, तो जब भी होगा तो वो वजू को तोड़ देगा, खा नमाज ही की हालत में क्यों ना हो। यानी कि दो कंडीशन हो सकती है, एक ये है कि किसी को मुसलसल इखराज होता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो जब नमाज का टाइम हो जाएगा तो वो नमाज के लिए वजू करेगी और नमाज पढ़ लेगी, सिर्फ उसी नमाज तक उसका वजू कायम रहेगा, चाहे उसका नमाज के दौरान भी जो है वो निकोरिया हो रहा हो। लेकिन अगर किसी को कभी कभी होता है तो उस सूरत में यह है कि जब भी उसको लिकोरिया होगा उसका वजू टूट जाएगा, चाहे वो नमाज की हालत ही में क्यों ना हो, उसको नमाज के लिए जो है फिर दोबारा से अपने आप को साफ करके तो वजू करना होगा। तो इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन जो है वो उसके साथ अगर किसी को लिकोरिया का मसला है तो वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो होगी वो फिर उसके साथ होगा। अच्छा, मनी क्या है? मनी ये है कि जो शहावत और जोश के साथ जो डिस्चार्ज होता है ये मनी है। इसके बारे में उलमा का ये कहना है कि ये पाक होती है, लेकिन धोना, इसको धो लें, अगर सूख गई है तो इसको खुरच लिया जाता है, जैसे कि हमें आयशा रज़ी अल्लाह से भी इस हदीस के बारे में पता चलता है। मनी का हुक्म क्या है? जनाब अमर बिन मैमून रहमतुल्लाह फरमात से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने सलमान बिन यसार रहमतुल्लाह से सवाल किया, अगर कपड़े को मनी लग जाए तो क्या हम सिर्फ इसी हिस्से को धो लें या पूरा कपड़ा धोएं? तो सलेमान रहीमल्लाह ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को भी वो चीज लग जाती थी, तो हम कपड़े को धोकर इसे उतार देते थे, फिर वही कपड़ा पहन कर आप ससम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते, और उस कपड़े पर धोने का निशान जो था वो नजर आ रहा होता था। औरत अगर मनी का निशान देखे तो कतादा से रिवायत है कि अनस बिन मालिक ने इन्हें हदीस सुनाई कि उम्मे सुलैम ने इन्हें बताया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी औरत के बारे में पूछा जो नींद में वही चीज देखती है जो मर्द देखता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत ये चीज देखे तो गुस्ल करे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं इस बात पर शर्मा गई, फिर आप बोली
क्या ऐसा भी होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वरना फिर मुशाबहत कैसे हो? मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद होता है, औरत का पानी पतला और जर्द होता है। इन दोनों में से जिस हिस्से को गलबा मिल जाए, सबकत ले जाए, यानी तो इसी से बच्चे की मुशाबहत होती है। तो इसमें यह है कि जिसे हम एहतलाम कहते हैं, यानी वेट ड्रीम कहते हैं, मर्दों के साथ ये ज्यादा होता है। लेकिन ये चीज औरतें अमूमन इस चीज से नावाकिफ हैं, और बाज़ दफा उनको पता नहीं चलता। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन जो है, अगर वो देखें, उनके साथ भी अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई हो, तो उस सूरत में उन्होंने कोई मतलब ऐसी कोई ड्रीम आई हो, तो वो अपना अंडरगारमेंट्स चेक कर सकती हैं उठ के। अगर अंडरगारमेंट्स पर वेटनेस हो, तो फिर वो उन पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। अगर वेटनेस नहीं है तो फिर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। मजी, मजी क्या है? मजी ये कि शहवत मुतहर्रिक होने पर निकलने वाला शफाफ लैसदार पानी। ये नजीस है, ये वजू तोड़ देता है, इस पर गुस्ल नहीं होता। मजीब होता है कि जिसे जब मियाँ बीवी फोर प्ले करते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जब वो उस मोड में जाते हैं, फोर प्ले करते हैं, तो उस टाइम जो वेटनेस जो होती है, वो मजी कहलाती है। और ये नजिस होती है, ये वजू को तोड़ देती है, लेकिन इससे गुस्ल जो होता है वो फर्ज नहीं होता। अली रज़ी अल्लाह कहते हैं, मुझे बकसरत मजी आती थी, क्योंकि मेरे घर में नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह थी। इसलिए मैंने एक शख्स जो मिकदाद बिन असवद जो अपने शागिर्द थे, उनसे कहा कि वो आपसे इसके मुतालिक मसला पूछें। उन्होंने पूछा तो आपसे ने फरमाया कि वजू कर लो और शर्मगाह को धो लो, यही काफी, यानी गुस्ल का नहीं कहा। वदी क्या होती है? वदी होती है वो सफेद गाढ़ा पानी जो पेशाब के आखिर में चंद कतरों की शक्ल में खारिज होता है। इसकी बू नहीं होती, ये पेशाब के हुक्म में है। इससे वजू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। शर्मगाह को धोकर नमाज के लिए वजू कर लीजिए। बाज दफा ये उन मर्दों को ज्यादा होता है जो कि रेसलिंग करते हैं या वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हैवी उठाते हैं, तो बाज दफा उनको ये शिकायत हो जाती है। जनाबत क्या है? इसके मानी दूर रहने के हैं, शरण नमाज से दूर रहने का बायस है। और इसके दो असबाब होते हैं, यानी दो वजह से ये होता है। एक ये है कि अंजाल, यानी कि डिस्चार्ज होना, मनी का डिस्चार्ज होना, यानी एहतलाम। दूसरा ये कि मियाँ बीवी का ताल्लुक, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इन दोनों सूरतों में जो है ये इसके ये जो दो असबाब हैं, वो इन दोनों दोस्त की दो सूरतें हैं। जुम्बी मोमिन जो होता है वो नजिस नहीं होता। हुजैफा रजी अल्लाह से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले, मुसाफिया किया, इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने कहा मैं जुम्बी हूँ। आपसे सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुसलमान नापाक नहीं होता। जुम्बी जो है अबू हुरैरा से भी रिवायत है कि मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इस वक्त मैं जुम्बी था, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आपके साथ चलने लगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर पीछे से खिसक गया, घर आया और गुस्ल करके फिर हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे हुए थे, आपने दरियाफ्त फरमाया ए अबू हुरैरा, कहाँ चले गए थे? मैंने फरमाया, मैंने वाकया बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, मोमिन नजिस नहीं होता। तहारत, तुलुए फजर से पहले गुस्ल कर लेना ताकि फजर मिल जाए, क्योंकि फरिश्ते जुम्बी के करीब नहीं आते। तो ऐसी कोई बिल्कुल कोई सख्त कंडीशन नहीं है कि फौरन उसी टाइम ही गुस्ल कर लिया जाए जब हालत जनाबत हो। मगर ये है कि नमाज का ख्याल रखना जरूरी है कि नमाज जो है वो कज़ा ना हो, कोई भी नमाज जो है वो कज़ा ना हो, क्योंकि फरिश्ते फिर जुम्बी के करीब नहीं आते। अम्मार बिन यासिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन किस्म के लोगों के पास फरिश्ते नहीं आते। एक काफिर की लाश के पास, और जिसने खलूक यानी जाफरान से मुरक्कब खुशबू लगाई हो, कोई खास कोई खुशबू है। दूसरा ये जुम्बी आदमी, इल्ला ये कि वो वुजू कर ले। आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में होते या सोना चाहते तो नमाज के लिए वजू की तरह वो वजू कर लेते। यानी कि अगर उस टाइम फौरन वो नहाना नहीं चाह रहे तो फिर सिर्फ वजू कर लेते। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो कोई अपनी अहलिया के पास आए, फिर इसका ख्याल दोबारा आने का हो, तो चाहिए कि इन दोनों के दरमियान में वो वजू कर ले।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वुजू कर लेते। गुस्ले जनाबत। आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ले जनाबत फरमाते तो आप पहले अपने हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपने शर्मगाह को धोते, फिर नमाज की तरह वुजू की मानिंद वुजू फरमाते, फिर पानी लेकर उंगलियों को बालों की जड़ों में दाखिल करते। आज जब आप समझते कि आपने अच्छी तरह जड़ों में पानी पहुंचा दिया तो अपने सर पर दोनों हाथों से 3 चिल्लू डालते, फिर सारे जिस्म पर पानी डालते और जिस्म धोते, फिर आखिर में अपने दोनों पांव धो लेते। तो जुम्बी को जो है वो खवातीन के मामले में उनके बाल लंबे भी होते हैं, तो उसमें यह है कि अपने बालों की जड़ों तक पूरी अच्छी तरह जो है वो पानी पहुंचाएं। नीचे से बाल जो लंबे हैं उनको बांध दिया जाए या किसी लिफाफे में बंद कर दिया जाए। जैसे कि शादी के शुरू दिनों में खवातीन को बाज दफा ज्यादा गुस्ल की जरूरत पड़ती है बार बार, तो उससे बाल जो है वो धोना और उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में यह है कि बालों को नीचे से बांध लिया जाए और बालों की जड़ों तक जो है वो मुकम्मल पानी जो है उसको इस तरह पहुंचा लिया जाए, तो ये काफी होगा। गुस्ले जनाबत जो है वो ठहरे हुए पानी में जो होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु कहते हैं, ऐसे सुना, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में गुस्ले जनाबत ना करे। अबू साहब ने फरमाया ए अबू हुरैरा, वो क्या करे? उन्होंने जवाब दिया वो इसमें से पानी ले ले। जिस तरह होता है ना टब, बाथ टब बने होते हैं, वो पानी ठहरा हुआ है तो उसके अंदर जाकर हालत जनाबत में उसके अंदर घुस कर मत नहाया जाए। ठीक है। तो वहां से अगर वैसे जो टब है उसमें से पानी लेकर अपने ऊपर डोंगा लेकर पानी जो है वो डाला जा सकता है। शोहर और बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे, और उस बर्तन को भी कहा है कि उसका नाम था फरक, उसको फरक कहा जाता था। आयशा रंतला कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते, 2 रकअतें अदा करते, नमाज फजर पढ़ते, और मैं नहीं समझती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वजू की तजदीद करते थे। यानी कि जब मसनून तरीके से गुस्ल कर लिया तो उसके बाद फिर वजू की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जनाबत की हालत में वफात। उलमा के मुताबिक जुम्बी और हाइजा अगर फोत हो जाएं तो उनको एक ही गुस्ल काफी होगा, और ये बुरे खात्मे की अलामत नहीं है। बाज दफा कुछ औरतें डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो सूरत में ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो ये कोई बुरे खात्मे की अलामत नहीं है। इसमें ऐसी इस बारे में कोई उनके बारे में गलत ख्याल सोचना ये बुरी बात है। इस चीज को हम जो है ना उस बुरी अलामत नहीं समझते। इसी तरह हंजला रज़ी अल्लाह की शहादत का वाकया जो है ये भी पहले बयान हो चुका है कि उनकी वो जुम्बी थे और हालत जुम्बत जो जनाबत में उनकी शहादत हुई, और उनकी जो मैयत थी उसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। जुम्बी अल्लाह का जिक्र कर सकता है, अलबत्ता मुसफ को हाथ नहीं लगाएगा। आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औकात में अल्लाह का जिक्र करते थे, और मतलब सिवाय इसके कि जब वो हालत जनाबत में होते थे। तो अल्लाह का जिक्र जो है वो तो किया जा सकता है, लेकिन कुरान जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा हालत जनाबत में। दौरान हैज और निफास और एहतलाम जो है गुस्ल जो है वो वाजिब होगा। हालत एहराम में एहतलाम। एहराम को फासिद नहीं करता, और क्योंकि एहतलाम जो है वो उसमें इख्तियार नहीं है, वो तो हो गया, तो उस वो जो है एहराम को फासिद नहीं करता, ना ही दम या कुफारा वाजिब है, अलबत्ता ये है कि गुस्ल करना जरूरी होगा। सनयास यानी मेनोपॉज। मेनोपॉज जो है इससे हर औरत को वास्ता पड़ता है, और इसकी जो एज है वो डिफरेंट हो सकती है, 45 से 60। बाज दफा बाज खवातीन को 45 से पहले भी ये कंडीशन हो जाती है। बाज खवातीन के जिस तरह पीसीओएस का मसला होता है, बाज खवातीन को आजकल एंडोमेट्रोसिस जो है वो उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल चुका है, और अक्सर खवातीन को ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी लीड करता है टुवर्ड्स, बाज दफा उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाज जेनेटिक्स में बाज खवातीन क्या होता है कि उनको जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, तो मेनोपॉज की मुख्तलिफ उसमें एज आ सकती है, और इसकी वजह से बाज दफा खवातीन जो है जिस्मानी तौर पे भी नफसियाती तौर पे भी वो मुख्तलिफ कंडीशन से गुजरती हैं। तो ये हैज में बेतरतीबी हो जाती है। हैज जैसा खून जो है वो अगर है तो वो क्या है कि दम जो है वो फासिद होगा अगर हैज जैसा ही खून है। सब्ज या भूरे रंग की रतूबत जो है वो नजिस नहीं है। बाज दफा इस तरह की भी आ जाती है, सब्ज रंग की या भूरे रंग
कि वो किसी हार्मोनल कंडीशन की वजह से होती है। फिर ये है कि इस पीरियड्स, इस जो ये औकात हैं, इस लम्हात में, क्योंकि अक्सर खवातीन जो हैं वो ज़हनी तौर के ऊपर, बाज़ दफ़ा नफसियाती तौर के ऊपर भी मसाइल का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ होता है, और बाज़ खवातीन के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आते हैं और उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है नफसियाती तौर के ऊपर। तो क्या है कि इब्ने उमर फरमाते हैं कि शाम हो जाए तो सुबह के मुंतजिर ना रहो, और सुबह हो जाए शाम के मुंतजिर ना हो, और अपनी फरागत को, अपनी सेहत को फरागत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। यानी कि जितना भी टाइम जो है वो अल्लाह की याद में गुजर सकता है उसको गुजार लो। अब चंद अहम सवालात और उसके जवाबात। ये कुछ कंडीशंस आपके सामने जो पेश की जा रही हैं, ये मुस्तनद उलमा की जो उन्होंने जो उसके बारे में डिटेल बताई हुई है, ये उसी से रिलेटेड है, और इसमें आप लोगों के मैक्सिमम सवालात के जवाबात भी होंगे। अगर फजर के फौरन बाद पाक हो गए हैं, फजर का टाइम खत्म हो गया है और उसके फौरन बाद पाक हुए, तो फिर रोजा नहीं रखा जाएगा। फजर से पहले पाक हुए मगर गुस्ल जो है वो बाद में किया जा सकता है, तो उस सूरत में रोजा रखेगी। नफसा यानी जो नफास वाली खातून है, 40 दिन से पहले अगर पाक होगी तो नमाज रोजा रोजा उस पर वाजिब है। किसी औरत का अपने मारूफ आदत से ज्यादा दिन उसको अगर हैज आए तो नमाज रोजा छोड़े रखे। बाज दफा कभी कभार कोई किसी खुराक की वजह से या किसी बाज दफा स्ट्रेस की कंडीशन में भी बाज दफा हैज जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तो उस सूरत में अगर किसी का 6 दिन आता है तो 7 या 8 दिन हो गया, तो बहरहाल वो थोड़ा इंतजार करेगी। ठीक है। नफास की मुद्दत जो है मुतय्यन मुद्दत नहीं है, अलबत्ता आ, ये है कि बाज आयमा के नजदीक जो है 60 दिन के बाद इस्तिहाजा शुमार होगा। 40 दिन उसकी मैक्सिमम मुद्दत है, लेकिन अगर किसी वजह से मुसलसल या ब्रेक कर करके 60 दिन जो है वो ब्लीडिंग होती है, तो उसके बाद फिर वो इस्तिहाजा के हुक्म में शामिल हो जाएगा। हैज के अयाम में एक दिन छोड़कर एक दिन खून आना, ये हैज के ताबे ही है। और खून जो है वो, खून अगर नहीं है तो हालत तौहर है, 15 दिन बाद जो है वो इस्तिहादा शुमार होगा। ये इमाम अहमद बिन हंबल जो है उनका ये फतवा है। यानी कि किसी औरत को एक दिन आ रहा है खून और एक दिन नहीं आ रहा, इस तरह अगर हो रहा है, तो वो जो हुक्म होगा वो हैज की कंडीशन में ही शुमार होगा 15 दिन तक। अयामे हैज में खून का रुकना बगैर सफेद पानी के, आदत है तो रुके रहे वरना इबादत जारी रखे। बाज दफा ऐसा होता है ना कि बाज खवातीन को या बाज बच्चियों को 3 दिन पीरियड्स आए, फिर बीच में 2 दिन का गैप आ गया, फिर जो है छठे दिन फिर ब्लीडिंग शुरू हुई, तो वो हैज के हुक्म में ही शुमार होगा। अगर उनकी ये आदत है तो वो उसी के अंदर शुमार होगा। हाइजा और नफसा यानी उसका पाकी के बाद कपड़े बदलना जो है जायज है, इसमें कोई हुक्म नहीं है। बदल सकती तो बदल ले। इख्तलाफी मसला बाज लोगों ने बनाया हुआ, लेकिन ये इस तरह नहीं है, जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। पाक है तो वही कपड़े भी पहन सकती है, अगर चेंज करना चाहती है तो कर भी सकती है। औरत की रोजे की कज़ा जो है वो उसको मुकम्मल करेगी। हामला को खून आना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपनी इबादत जारी रखी, कि इल्ला ये कि जब उसकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया और लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर अगर ब्लीडिंग होती है तो फिर वो उस सूरत में वो नफास में शुमार होगा। फिर पाकी के बाद खून के धब्बे देखना, यानी कि गदला पानी, जर्दी माइल रतूबत जो है वो हैज में शुमार नहीं होगी। मुसलसल खून 1-2 दिन के वक्फे से मखसूस दिन, यानी कि इख्तलाफ इसमें 13 दिन तक जो है वो इसमें आता है कि 13 दिन जो है वो मुद्दत तोहर जो है ना वो उसमें शुमार होगी। यानी कि मुसलसल खून आ रहा है, बीच में 1 या 2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसमें मखसूस दिन जो है ना अपने शुमार कर ले। जो जिसको वो पीरियड्स जो है वो उसको वो समझ ले। और ये मसला जो है वैसे थोड़ा इख्तलाफी है। इसमें बाज के नजदीक कहते हैं कि 13 दिन जो है वो कम अज कम 13 दिन जो है वो हालत तोहर जो है ना वो जरूरी होनी चाहिए। बहालत है रोजा खाना चखना, जरूरतन हो तो इजाजत है, मगर थूक दे बाज दफा कुछ किसी के अगर शोहर जो है वो सख्ती करता है इस बात के ऊपर, तो वो औरत जो है नमक में चखने के लिए उसको थोड़ा सा चख सकती है, और फिर उसको चखते साथ ही थूक दे। हामला औरत से खून का इखराज होना, ये
اس میں کیا ہے، دو اقسام ہے اور اس کے حکم اس کے مطابق ہے. ساکت اگر حمل ہو گیا یعنی کہ حمل گر گیا، ساکت ہو گیا ہے، تو ساکت حمل کا خون جو ہے اعضائے انسانی بننے کی صورت میں نفاس میں شمار ہوگا. اور اعضاء اور شکل بن گئی تو بھی نفاس میں شامل ہوگا. جنین کی مدت جو ہے وہ کم سے کم اگر 81 سے 90 دن ہے، یعنی 3 ماہ سے کم ہے. استحاضہ کی نماز جو ہے وہ عادت کے جو دن اپنے حیض کے دن نکال کر باقی دن جو ہوگی وہ حالت طہر میں شمار کرے گی. استحاضہ کی نماز کی جو تیاری ہے اس میں کیا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو واش کر لے، شرمگاہ دھو لے، کپڑا باندھے اور نماز پڑھے. استحاضہ پر نماز کی مشقت مکمل 2 نمازیں جمع یا تقدیم و تاخیر جائز ہے. اور اس میں پھر وہ جو غسل والا جو نا وہ اصول آئے گا، لیکن یہ ہے کہ استحاضہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو اس کو علیحدہ سے کرنا ہوگا. حائضہ کا مسجد میں آنا ٹھہرنا جائز نہیں ہے، مسجد سے گزر سکتی ہے. لیکوریا جو ہے یہ پاک ہے مگر ناقص وضو ہے، یعنی وضو توڑ دیتا ہے. لیکوریا کا مسلسل آنا جو ہے اس میں کیا ہے کہ وقت داخل ہونے پر جو ہے ہونے کے بعد نماز کے لیے نیا وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. یہ اتنے ہی صرف اس نماز کے لیے اس کا ہوگا. اس دوران اگر اس کو لیکوریا ہو بھی رہا ہے تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو لیکوریا رک رک کر آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے، تو وہ وقفے کا انتظار کرے. مگر نماز کا وقت اگر تنگ ہو رہا ہے تو نماز کے لیے وضو کر لے، نماز پڑھے. اگر دوران نماز اس کو لیکوریا آ جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو وہ اس بعض لوگوں کو جو جن کو ہوتا ہے ان کو عادت کا بھی پتا ہوتا ہے، تو وہ اپنی عادت کے مطابق اتنا ویٹ کر سکتے ہیں کہ جب یہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کر لیں. فرض نماز کے وضو سے نوافل اور اسی نماز کے وقفے میں جو ہے استحاضہ بھی اور جن کو لیکوریا ہوتا ہے وہ بھی نوافل جو ہیں وہ اسی نماز کے وقفے میں ادا کر سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ مسلسل لیکوریا یا استحاضہ کا حکم. فجر کے وضو سے لے کے وضو سے چاشت جو ہے وہ ناجائز ہے. یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر اس وضو سے چاشت نہیں پڑھی جائے گی. عشاء کے وضو سے تہجد ناجائز ہے، مگر تہجد کے لیے دوبارہ واجب نہیں. لیکوریا کا رک رک کر باقاعدگی سے آنا. وقت داخل ہونے کے بعد نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. رطوبت کے بارے میں کوئی واضح اس طرح حدیث نہیں ہے، یہ عام مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، اسی لیے اس کے بارے میں کوئی واضح اس طرح حدیث نہیں ملتی. حیض سے پہلے مٹیالہ پانی جو ہے وہ حیض میں ہی شمار ہوگا. یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدھا کوئی ہلکی سے داغ لگ گیا اور پھر اس کے بعد کوئی پانی ہے تو وہ بعض خواتین کے بعض دفعہ اس طرح ہیبٹ بھی ہوتی ہے تو وہ حیض میں ہی شمار ہوگا. اس میں یہ ہے کہ دن بھی قریب آ چکے ہوئے ہیں اور درد بھی ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیض ہی ہے. بحالت حیض حرام احرام جائز جو ہے نوافل جو ہے وہ احرام کے ساتھ مشروع نہیں، یعنی کہ احرام باندھنے کے لیے نفل پڑھنا جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ اس کی شرط نہیں ہے. طواف افادہ جو ہے وہ اور حیض بوجہ بعض دفعہ بعض خواتین جو ہے نا شرم کی وجہ سے نا یہ بتاتی نہیں ہے، اور اگر حیض ہے تو پھر طواف جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، ناجائز ہوگا، اس کو لوٹانا ہوگا. طواف افادہ اور حیض یعنی سفر ناممکن ہے، حج مکمل اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں تھا. بعض علماء بعض دفعہ اب یہ کہتے ہیں کہ بعض خواتین جو ہیں وہ طواف افادہ جو ہے کیونکہ وہ کرنا لازم ہوتا ہے، تو اب کسی کی واپسی کی ٹکٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کے پاس وہ مزید کچھ وہاں پر کچھ دن سٹے بھی نہیں کر سکتی. اور ظاہری بات ہے کہ جب واپسی کا سفر جو ہے وہ جانا ہے تو اب اس کے پاس مالی طور کے پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس چلی جائے اور پھر دوبارہ آئے کسی وقت اور آ کے وہ طواف کو لوٹائے. تو یہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ سفر کا اخراجات اور وہ سارے جو ہیں وہ عام انسان کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک سختی سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ
پیڈ اور بس اچھی طرح سے وہ باندھ لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے طواف کر لے، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ اس سے زیادہ وہ بے بس ہے، وہ معذور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ تو اگر وہ طواف افاضہ نہیں کرے گی تو اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عذر کو جانتا ہے، تو وہ پھر علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ احرام جو ہے عمرہ احرام عمرہ باندھنے کے بعد حیض آ گیا تو پاکی کا انتظار کرے، اگر حالت احرام میں یعنی کہ جو ہے وہ اگر حیض آ گیا تو پھر پاکی کا انتظار کرے گی، اور احرام عمرہ کے بعد حیض آ گیا، اس میں پھر وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جس میں سفر جو ہے وہ واپس آنا ناممکن ہے، تو پھر وہ حالت عذر جو ہے وہ ممنوع کو مباح کر دیتی ہے۔ بحالت حیض طواف وداع ساقط ہے، البتہ طواف افاضہ نہیں۔ جو طواف وداع جو ہے اس کی اگر حائضہ کے لیے اس کی تخصیص کر دی گئی ہے، طواف وداع جو ہے اس کی تخصیص ہے، لیکن طواف افاضہ جو ہے اس کی نہیں ہے۔ طواف حائضہ طواف سے پہلے صحیح جائز ہے، حدیث میں ہمیں ایک شخص کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی کہ طواف سے پہلے صحیح کر لی جائے، اگر حائضہ کر لے تو ہمیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حائضہ کا احرام کے بعد میقات کراس کرنا، ام، احرام کے بغیر میقات کراس کرنا جائز نہیں ہے۔ نیت اس نے کی بھی ہے تو وہ پھر احرام جو ہے حائضہ پہن لے گی، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی حدیث میں پڑھا ہے۔ حالت حیض میں احرام باندھنا، طواف اور صحیح نہ کرے حتیٰ کہ پاک ہو جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صحیح ویسے حالت حیض میں کی جا سکتی ہے، لیکن اب چونکہ جو صحیح کی جو جگہ ہے وہ بھی مسجد کے اندر شمار ہوگی ہے، تو بیشتر علماء جو ہیں وہ اس چیز میں اب وہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں صحیح بھی نہ کی جائے، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ بن چکی بھی وہ جگہ۔ پھر حالت احرام میں طواف سے پہلے حیض آنا، طواف اور صحیح نہیں کرے گی حتیٰ کہ پاک ہو جائے، جب پاک ہو جائے تو پھر وہ طواف جو ہوگا وہ کرے گی۔ احرام میں مکمل طواف کے بعد حیض آنا، تو یہ ہے کہ طواف تو ہو گیا ہے، اس کے بعد حیض آیا تو پھر اپنے عمرہ کے باقی مناسک جو ہوگی وہ پورے کر لے گی۔ تو الحمدللہ یہاں پر آپ کا یہ ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت قبول کرے، اور اگر آپ کو فائدہ ہوا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔